Hello and welcome to weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Well, basically we handle Tally, that is Tally ERP9, that is Tally Prime, an accounting cum business processes software. And we are into SAP Business One, a key for every business solutions. And we are into Bittrex 24, a customer relationship management software. And we are into Skill India, a government project which is specifically concerned for the education and employment of children. And apart from this, we are into cloud backup software, and we are into Acromix, which is a cloud backup software specifically for to work from home or to work from any scenario. This software will be supporting you. And apart from this, now let us see, this is all about the softwares, what we do. Let's see what exactly we do with this softwares. We are basically into sales, we are basically into solutions, we are into services, and we are into implementation and into advisory. What is this advisory? Advisory is nothing but we provide the solutions in the interrupted or distracted business. So we are into the all-in-one package, that is all about the system management or else organization development, or we are into software like management, etc., etc. So as we are into all the sectors of a business development or a business stability, we support the customers 24/7. Well, beyond this, let me just inform you that we are onto the very hottest and demanded topic, that is like accounting and financial management, receivable and payable management, and credit management. These are the three different, very, very important things which has to be managed into the like in any kind of organization. And specifically, let me say you here that Tally Prime is such a flexible software which is just supporting you to just handle the scenarios in a very, very simpler way. All right, so this is what all about today's webinar. Now let us introduce the speakers, that is Mrs. Anaga. Are you here? Yes, I'm here. Hi, Mrs. Anaga. Hearty welcome to the webinar session. And now let us see the next speaker, that is Miss Manali. Miss Manali, are you here? Yes, ma'am, I'm here. Hi, Miss Manali. Pleasure to see you here, and hearty welcome again. And we have a resource person, that is Mr. Bhagwati. So, Mr. Bhagwati, are you here? Yeah, hi Deepa, good afternoon. I am here. Hi, Mr. Bhagwati. Good afternoon. Pleasure to see you. Thank you for your presence and welcome to the webinar training session. Well, beyond this, let me welcome all the spectators today who are here. Hearty welcome to all the spectators. All right. So now let me just give you a few instructions, that is like the video, this webinar session is getting recorded. So do connect us onto all the social media sites. You can check in the comment box. We have updated the details of our social media and request you to please click it now itself, because once the call gets disconnected, you will not be able to access the messages of this particular meeting. So yes, now it's over to Mrs. Anaga. Request you to please introduce yourself and start up the session. Thank you, Deepa. Hello, everyone. Good afternoon. Myself, Anaga. I'm representing Rajlakshmi Solution. So I'm here today to present you today's hottest topic, that is accounting and financial management. So just a minute, I will share my screen. My screen is visible? Hello? Yes, ma'am. Yes, Anaga. Yes, sir. Yes, it's visible, Ms. Anaga. Okay. So this is Rajlakshmi family. So coming to the topic.
just a minute. So accounting and financial management. So first we'll see what is accounting and what is financial management. So accounting is the activity or the system of keeping records of transactions of a books in a business or any other organization. Means accounting क्या है कि जो भी हमारे business transactions होते हैं वो हमें systematic way में हमें उसको record करना रहता है for the complete accounting process, जिससे हमें हमारा data जो है properly manage कर सकते हैं. Then the next is financial management. So what is the financial management? कि जो भी रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन कर रहे हैं तो वो अगर हमें मल्टीपल लोकेशन वाइज डेटाबेस हैंडल करना है वो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं. इट्स नॉट ओनली फॉर करेंसी इंडियन करेंसी, इट इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर द मल्टी करेंसी ट्रांजैक्शन. आल्सो वी कैन कंप्लीटली मैनेज द कैश फ्लो एंड द फंड फ्लो एंड इवन द पेमेंट रिसिप्ट. सो दिस इज द बेसिक अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज easily managed in the Tally Prime. So now next topic is receivables and payables. The most important, जैसे हमने डेटाबेस, हम लोग क्या करते हैं कंपनी में रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं क्योंकि हम कंपनी में ट्रांजैक्शंस करते हैं वाया परचेज एंड सेल्स. सो परचेज एंड सेल्स में अगर हम लोग करते हैं तो उसका हमें पेमेंट भी करना है क्योंकि लायबिलिटीज भी होती है. तो जैसे फर्स्ट इज योर अकाउंट्स रिसीवेबल्स. तो व्हाट इज अकाउंट्स रिसीवेबल? द अमाउंट्स दैट यू हैव टू रिसीव फ्रॉम द सन्डी डेटर्स. मीन्स हमने जिस कस्टमर्स को सेल किया हुआ है तो हमें जो भी सेल किया हुआ है उसका अमाउंट हमें क्या होगा सन्डी डेटर्स से रिसीव होगा. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंट्स पेएबल. सो हमने परचेज जो किया है तो हमें क्या करना होता है उनको अमाउंट पे करनी होती है विच आर पेएबल टू अस. सो ये कैसे मैनेज कर सकते हैं? सो दिस बोथ द प्रोसेस वी कैन कंप्लीटली मैनेज बिल वाइज इंफॉर्मेशन ऑफ द अमाउंट्स रिसीवेबल एज वेल पेएबल, पर्टिकुलर पार्टी वाइज, ग्रुप वाइज और बिल वाइज. अगर हमने पर्टिकुलर जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली मैनेज की तो जो हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल एंड पेएबल्स है वो हमें इजीली प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगा जिससे हमारा आउटस्टैंडिंग हम क्लियर कर सकते हैं. सो ये क्या होगा इजीली उसका पेमेंट रिसिप्ट में भी हमें ट्रैकिंग मिलेगा. इवन द पार्टी इज पेड इन एडवांस, और अगर हमने भी कोई पार्टी को एडवांस पे किया हुआ है तो इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस. अगर हम फॉलो करेंगे तो ये इजीली हम ये डेटा रिसीवेबल पेएबल्स का मैनेज कर सकते हैं. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडिट. जैसे हमने पहले देखा कि रिसीवेबल पेएबल्स में हमने सिर्फ डेटाबेस मैनेज किया कि हमारा आउटस्टैंडिंग क्या था. इसमें हम क्रेडिट मैनेजमेंट में कि कंपनी के कुछ पॉलिसीज होते हैं कि अगर मुझे क्रेडिट पीरियड असाइन करना है कोई भी कस्टमर्स को, सो डिपेंड मीन्स कंपनी के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम सामने वाले कस्टमर्स को क्रेडिट दे सकते हैं. तो इट इज़ इन टू टाइप्स. वन इज इन द क्रेडिट डेज बेसिस, मीन्स हम स्पेसिफिक पार्टीज को क्रेडिट पीरियड अलॉट कर सकते हैं जैसे कि फॉर 30 डेज या 60 डेज या 45 डेज या 90 डेज, जो भी पीरियड हम अलॉट करते हैं ताकि हमें क्या होगा जो भी पर्टिकुलर हमने अमाउंट हमें रिसीव होने वाली है वो पर्टिकुलर ड्यू डेट के अंदर हमें रिसीव हो जाए. एंड द सेकेंड थिंग इज क्रेडिट लिमिट. क्रेडिट लिमिट क्या होता है कि अगर मुझे पर्टिकुलर पार्टी को अमाउंट वाइज ब्लॉक करना है कि वो उसको एक्सीड नहीं करे, वो पर्टिकुलर अमाउंट तक वो कितना भी बिलिंग्स कर सकता है, तो दैट इज योर क्रेडिट लिमिट. सो इट्स डिपेंड्स ऑन द कंपनीज पॉलिसी कि उनको कैसे असाइन करना है, दैट इज नोन एज क्रेडिट मैनेजमेंट. सो जैसे अभी ये सारे प्रोसेस मैंने आपको थियोरेटिकल एक्सप्लेन किया है, हम अभी इसको प्रैक्टिकली लाइफ कैसे प्रोसेस होती है वो हम देखेंगे. सो नाउ इट्स डन फ्रॉम माय साइड. इट्स ओवर टू यू मनाली. Yes, ma'am. Thank you, Anagha, ma'am. All the points explained very well. So now it's time to check live implementation. So hello everyone. Very good evening to all who are present here. Myself Manali Sawant, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. Today I am here to present you most important and needed topic, that is receivable and payable management, and second one is credit management. So basically it's very simple to track and manage your invoices by using our all new product, that is Tally Prime. So Tally Prime से हमारा जो complete outstanding है या फिर credit management है हम लोग easily उसे manage कर सकते हैं. So basically in our today's session we'll see how to do bill wise features configuration,
ledger configuration and voucher configuration. So first we'll start with receivables and payables. So what is receivables and payables? As explained by Anagha ma'am, जैसे कि हम लोग किसी पार्टी से सपोज कुछ मटेरियल परचेस कर रहे हैं तो हमें उनको पे करना रहता है, तो वो सारे जो हमारे पेंडिंग इनवॉइसेस रहते हैं या फिर पेंडिंग पेमेंट्स की जो लिस्ट रहती है उसे हम लोग कहेंगे आउटस्टैंडिंग पेएबल्स. एंड सिमिलरली रिसीवेबल्स क्या होता है, जिनको हम लोग सेल करते हैं तो वो पर्टिकुलर पार्टी से हमें पेमेंट आना बाकी रहता है, यानी कि वो हमें पे करने वाले रहते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग much more time, we'll move ahead to live implementation of our today's topic. So first I will share my screen here. Okay, I hope it's visible. Yeah, madam, it's Okay, thank you. So let's start now. अभी आप देखोगे ये हमारा नॉर्मल टैली प्राइम का स्क्रीन हमें यहाँ पे शो हो रहा है. सो फर्स्ट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू लेजर क्रिएशन के साथ. सो न्यू लेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे. देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जाएंगे लेजर में. लेजर में जाने के बाद मैं एक सो एंड सो पार्टी यहाँ पे जनरेट करूंगी. दैट इज फॉर एग्जाम्पल गुडविल एंटरप्राइजेस, और इनसे मैं परचेस करने वाली हूँ. तो मैं यहाँ पे ग्रुपिंग सिलेक्ट करूंगी सन्ड्री क्रेडिटर्स. सो आप अभी यहाँ पे देखोगे कि नॉर्मल जो डिटेल्स हमारे रिक्वायर रहते हैं उतने ही हमें शो हो रहे हैं. बिल वाइज के लिए कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो वो हम लोग कहाँ से ऑन करेंगे, तो वो अभी हम लोग आगे देखेंगे. ये लेजर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट सेव कर लेते हैं. ठीक है, तो अभी हमें फर्स्ट ऑन करना है बिल वाइज का फीचर. तो वो हम लोग कहाँ से ऑन करेंगे, तो यहाँ पे टॉप मेन्यू बार पे आपको ऑप्शन दिया है टैली प्राइम में, दैट इज कंपनी. कंपनी में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अंडर कॉन्फ़िगर F11 फीचर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा. तो फर्स्ट हम लोग जाएंगे F11 में. F11 में एंटर करते ही यहाँ पे आपको अकाउंटिंग के नीचे एक सेकंड ऑप्शन मिलता है, दैट इज एनेबल बिल वाइज एंट्री. तो ये ऑप्शन हम लोग ऑन करेंगे. ठीक है, तो ये ऑप्शन अभी हम लोग ने ऑन कर दिया है. तो अभी हम लोग चेक करेंगे जो लेजर हम लोग ने बनाया है उसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं. तो मैं यहाँ पे जाऊंगी फर्स्ट ऑल्टर में, देन लेजर, जो ग्रुप या फिर लेजर हम लोग ने बनाया है तो मैं अभी सिलेक्ट करूंगी. सिलेक्ट करते ही आप यहाँ पे देखोगे कि स्क्रीन पे और एक ऑप्शन यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इज मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल. यस, अगर आपको आपके कंप्लीट बिलिंग्स का जो ट्रैकिंग आपको मेंटेन करना है, उसका जो भी पेमेंट रिसिप्ट का ट्रैकिंग आपको अच्छी तरीके से अगर मेंटेन करना होगा तो ये ऑप्शन ऑन रखना कंपलसरी है, चाहे वो आपके सन्ड्री डेटर्स हो या क्रेडिटर्स हो. मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ये ऑप्शन आपको ऑन रखना होगा. ठीक है, सो अभी तक हम लोग ने अपना बिल वाइज डिटेल्स का फीचर कॉन्फ़िगरेशन देखा, लेजर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो हम लोग ने देख लिया. अभी हम लोग जाते हैं वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में. सो फर्स्ट हम लोग जाएंगे अभी वाउचर्स में. वाउचर्स में जाने के बाद अभी जस्ट मैंने एक सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर बनाया है, तो मैं परचेज करना चाहती हूँ उससे. तो हम लोग जाएंगे परचेज के एंट्री में. I think Manali lost the connection. So, Mr. Bhagwati, you can just interrupt. By the meanwhile, you can just take a over recap onto the Anaga's discussion. Yes. So now this. Yes, please. You can just take a generic over recap till the time Manali just gets back. चालू करो. Sure. So. सर एक्चुअली मनाली का लैपटॉप ऑटोमेटिक बंद हो गया, जस्ट वो रिस्टार्ट कर रही और अभी स्टार्ट कर. It's not any concern, no problem, Ramlal ji, no problem. And yeah, so myself is Bhagwati Dhandaria from Rajlakshmi Solutions Private Limited. So now this is a topic, bill receivable and payable. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फंड लिक्विडिटी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आपने क्रेडिट में अगर प्रोडक्ट लिया है, आप अगर क्रेडिट में परचेज करते हो और आप सामने से क्रेडिट बेचते हो, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव ए कंप्लीट विजिबिलिटी ऑन योर आउटस्टैंडिंग, ऑन डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स. इन सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए टैली में बिल रिसीवेबल और पेबल जो ऑप्शंस है, दिस इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट, very easy to use
and this will manage by the simple entry system. आप जैसे ही एंट्री अपनी डालते हो और उसके साथ साथ आप उसमें अपना क्रेडिट पीरियड डाल देते हो. फॉर एग्जाम्पल, when you are buying a product from any creditors, any vendors, and you are putting the purchase transactions, you put the days. For example, किसी वेंडर ने आपको किसी इनवॉइस पर 30 डेज का क्रेडिट दिया है, कोई पर 45 डेज दिया है, किसी वेंडर ने आपको 60 डेज का दिया है, तो you can by default put the in master ledger. You can also put on the transaction level. So इससे क्या होगा कि आपका पेबल किस पर्टिकुलर डेट में कितना होने वाला है. You can do the prediction also कि आज मेरे पास अगर 1 करोड़ की क्रेडिट है, लायबिलिटी है, जो मुझे अपने वेंडर को पे करनी है, तो मुझे कब कब किस किस डेट में कितनी कितनी लिक्विडिटी चाहिए. तो वी कैन मेंटेन द आवर लिक्विडिटी फ्लो लाइक बैंक एंड कैश. सेम वे व्हेन वी आर बाइंग द प्रोडक्ट दैट नेचुरल वी आर सेलिंग. तो जब हम अपने क्रेडिट डेब्टर्स को, हम अपने कस्टमर्स, अपनी पार्टीज को जब हम सेल करेंगे, तो वी आर ऑल्सो सेलिंग इन द क्रेडिट फैसिलिटी में भी, or maybe we are doing the cash, but in terms of the credit facility, bill receivable is also very important. So you have to manage कि आज मैं, मुझे कोई पार्टी बहुत अच्छी पेमेंट कर रही है, तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर डेज का एक क्रेडिट फैसिलिटी कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल 20 days, 30 days, 15 days, whatever, 7 days, it depends on your business policies and scenario. Same way, you can define the credit period in the master ledger of the party. And इसके बाद भी, if you are selling the product throughout the sales voucher, that time there is options. You can also mention कि ये बिल कितने दिन की क्रेडिट में आपको देना है. In the same terms, जो क्रेडिट फैसिलिटी में जब आप देते हो, तो आपके पास ये विजिबिलिटी होती है कौन से पर्टिकुलर डेट में और डेज में आपको कितना कितना पेमेंट मार्केट से आना चाहिए. तो यू कैन ऑल्सो मेंटेन द बोथ थिंग्स कि क्रेडिट फैसिलिटीज आपको जो आई है उसका पे करना है, और जो क्रेडिट फैसिलिटी आपने दी है वो आपको रिसीव करना है. तो बोथ वे यू कैन मैनेज. यू कैन ऑल्सो सी द सिनारियो कि आपके पास लिक्विडिटी आपको एडिशनल कितनी चाहिए, या आपके पास लिक्विडिटी की पोजीशन क्या है. दिस इज अ major requirement of every business organization. So this is available in the Tally Prime, and when you are implementing in proper manner way, जिस स्टेप पे मैंने आपको बताया, वो स्टेप पे अगर आप उसको यूज करेंगे, तो you never stop on your business in terms of the liquidity. And second things, we are talking about the credit management. क्रेडिट मैनेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कस्टमर आपके पास है, यू हैव वन सिनेरियो कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट करना है इन योर ऑर्गेनाइजेशन और कितनी आपको क्रेडिट फैसिलिटी मार्केट में देनी है. उसके बेस पे आप क्रेडिट सेल्स कर रहे हो. जब आप क्रेडिट सेल्स कर रहे हो, तो यू आर बाइंग फ्रॉम द योर क्रेडिटर्स एंड यू आर सेलिंग टू द योर कस्टमर. सेम टाइम आपको किस कस्टमर को कितनी क्रेडिट देनी है, उससे कितनी लिक्विडिटी कितने टाइम में आ रही है, एज पर दैट सिनारियो यू विल मैनेज द थिंग्स. कि फॉर एग्जांपल, अगर आपका बंदा ऑपरेटर बिलिंग कर रहा है, आपका वेयर हाउस मैनेजर बिलिंग करवा रहा है, हर कस्टमर को आपने 1 लाख की, किसी को 50,000 की, किसी को 20,000, किसी को 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख. It depends on the customer size. It depends on the customer payment terms. Everything is based on that. You are giving the credit facilities. So you can also put that amount in the master ledger. तो ये जब master ledger में एक defined amount डाल देते हो, तो nobody can do the overbilling. अगर किसी एक कस्टमर को मैंने अगर 1 लाख रुपए की क्रेडिट फैसिलिटी दी है, तो 1 लाख से ऊपर अगर बिलिंग जाएगा, फॉर एग्जांपल
अगर 60,000 की आउटस्टैंडिंग है, अभी कोई मैं बिलिंग करने बैठूंगा तो मैं 40,000 के अंदर का ही बिल उसको कर पाऊंगा। उससे ज्यादा की अगर मुझे बिलिंग करनी है तो टैली विल गिव अ अलर्ट, यू कांट डू दिस थिंग्स। तो आपको बिलिंग 1 लाख के अंदर ही आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो दैट that control is also possible in the Tally Prime. So this is a credit management. So you can also manage, and इसके अलावा भी credit days management वगैरह भी अगर चाहिए तो this is also possible through the customization. So this is a normal standard product जहाँ पर इतनी चीजें हैं। इसके अलावा भी अगर आपको इसमें सिनेरियो में कुछ और एडिशनल चाहिए, this is also flexi. You can customize Tally as per your specific need. So this is a very beautiful features and they very informative. So we can use this feature and we can organize we can also manage all the things. Right? So that's it from my side. Screen is visible. Yes, it's visible. Please proceed Yeah, ahead. ठीक है, सो अभी तक हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन जो देखा था वो नॉर्मल बिल वाइज फीचर्स का कॉन्फ़िगरेशन देखा, लेजर कॉन्फ़िगरेशन देखा, और अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा वाउचर्स का कॉन्फ़िगरेशन। सो जनरली जैसे हम लोग नॉर्मल परचेस एंट्री पास करते हैं वही सेम परचेस एंट्री में अभी यहाँ पे पास करने जा रही हूँ। जैसे मैंने जो लेजर यहाँ पे बनाया था, दैट इज गुडविल एंटरप्राइजेस, पार्टी डिटेल्स, नॉर्मल हमारा परचेज का जो लेजर है वो हम लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे परचेज करते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा टैक्स, ठीक है। तो नॉर्मल जैसे हम लोग हमारी परचेस एंट्री सेव करें वैसे ही वो एंट्री हमें शो हो रही है। तो यहाँ पे कुछ अलग से हमें बिल वाइज डिटेल्स के ऑप्शन यहाँ पे नहीं शो हो रहे हैं, तो वो हम लोग कहाँ से ऑन करेंगे? तो यहाँ पे एंट्री लेवल पे ही हमें एक ऑप्शन दिया है, दैट इज F12 कॉन्फ़िगर में क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, दैट इज यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन। सो जनरली हमें कोई विंडो ऑन करना रहता है या फिर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है तो हम लोग वो ऑप्शन एनेबल करते हैं, यस करते हैं। सो बट इन दिस केस ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है इसे आपको नो रखना है। तो चलिए हम इसे नो कर देते हैं, और इसे नो करने के बाद हमारे एंट्री में क्या चेंजेस आते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। तो जैसे ही हम लोग ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जब भी आप एंट्री आपका सेव करने जाओगे तो बिफोर नरेशन एक विंडो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, दैट विंडो नोन एज बिल वाइज डिटेल्स। तो ये बिल वाइज डिटेल्स का विंडो क्या है एग्जैक्टली? तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ 4 मेथड शो हो रहा है, दैट इज एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस एंड ऑन अकाउंट। सो ये चारों चीजों का यूज क्या है वो अभी हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। लाइक एडवांस हम लोग कब यूज करेंगे? अगर सपोज आपको सामने वाली पार्टी ने एडवांस में पे किया है और आप वो पेमेंट का एक रिसिप्ट एंट्री पास कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा एडवांस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस हम लोग कब सिलेक्ट करेंगे? इन केस अगर आपने कोई सेल बिल पास किया है और वो सेल बिल के अगेंस्ट में आपको किसी पार्टी ने पेमेंट किया है तो वो इनवॉइस नॉकअप करने के लिए, यानी कि वो पर्टिकुलर एंट्री के सामने वो बिल हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में हम लोग नॉकअप कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। देन थर्ड वन इज न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस हम लोग कब सिलेक्ट करते हैं? जब भी आपका कोई फ्रेश एंट्री आप पास कर रहे हो, जैसे अभी हम हमारा एक परचेस एंट्री पास कर रहे हैं, उसका कोई प्रीवियसली ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो हम लोग उस टाइम पे सिलेक्ट करेंगे न्यू रेफरेंस। एंड द लास्ट वन इज ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट कब सिलेक्ट करेंगे हम लोग? जब भी पर्टिकुलर एंट्री आप पास कर रहे हो और वो एंट्री के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन पता नहीं है, लाइक वो एंट्री आपको कौन सी इनवॉइस के अगेंस्ट में नॉकअप करनी है, अगर ये आइडिया आपको पता नहीं है तो उस टाइम पे आप वहाँ पे मेथड सिलेक्ट करोगे ऑन अकाउंट। बट अभी हम लोग जाएंगे न्यू रेफरेंस के साथ। तो जैसे न्यू रेफरेंस यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक नॉर्मल अपना वाउचर नंबर यहाँ पे शो होता है। अगर वाउचर नंबर में आप एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन और मेंशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैन्युअली उसे ऐड कर सकते हो। तो ये था हमारा बिल वाइज डिटेल्स का विंडो। तो अभी ये एंट्री हम लोग सेव करेंगे। ये एंट्री सेव करने के बाद एक पर्टिकुलर रिपोर्ट अगर सपोज मुझे देखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फरवरी मंथ में मैंने ओवरऑल कितने परचेज किया है मटेरियल, उसमें से कौन सी पार्टी का पेमेंट देना अभी तक बाकी है मेरे एंड से, अगर वो पर्टिकुलर मंथ का रिपोर्ट मुझे चेक करना है या फिर ईयरली का रिपोर्ट मुझे देखना है
तो वो हम लोग कहाँ से चेक करेंगे? तो गेटवे ऑफ टैली से आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग्स। आउटस्टैंडिंग में जाते ही आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन शो हो जाएंगे, दैट इज रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। तो फर्स्ट अभी हम लोग को देखना है पेएबल्स का रिपोर्ट। तो अभी हम लोग जाएंगे पेएबल्स के रिपोर्ट के अंदर। जैसे ही मैंने पेएबल्स की रिपोर्ट में एंटर किया तो मेरे जितने भी परचेस के पार्टीज है जिनको अभी तक मैंने पेमेंट नहीं किया है, वो सारे डिटेल्स मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर वो इनवॉइस का डेट मिलता है, रेफरेंस नंबर मिल रहा है, पार्टी नेम, पेंडिंग अमाउंट, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही है। बट अगर इसके साथ साथ आपको और भी डिटेल में व्यू देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे Alt F1। Alt F1 करते ही सिनारियो चेंज हो गया और डिटेल में हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल गया, लाइक इंडिविजुअल पार्टी के सामने कौन सा बिल कौन सी डेट में आपने पास ऑन किया है, कितने अमाउंट का बिल है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पे शो हो रही है। एंड इवन अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में भी कुछ ऑप्शंस हमें दिए हैं टाइम में, तो हम लोग अभी देखेंगे उसका यूज क्या है। सो फर्स्ट वन इज पीरियड, ये तो हमें सबको ही पता है, अगर आपको पर्टिकुलर पीरियड का चेक करना रहता है डिटेल्स तो पीरियड चेंज करके आप उसे चेक कर सकते हो। देन नेक्स्ट है हमारा F3 कंपनी। अगर आप चाहते हो कि ये कंपनी के अलावा दूसरे कंपनी का मुझे आउटस्टैंडिंग चेक करना है तो आप F3 करके सिंपल डायरेक्टली ऊपर सिलेक्ट कंपनी में जाके दूसरी कंपनी आप इजीली ओपन कर सकते हो। देन नेक्स्ट है हमारा F4 ग्रुप। अभी फिलहाल हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में है। आप चाहते हो कि मुझे अलग ग्रुप का आउटस्टैंडिंग चेक करना है या फिर आपने ग्रुप वाइज अगर मेंटेन किया है आपका डेटा, तो वैसे अगर आपको दूसरे ग्रुप का अगर रिपोर्टिंग चेक करना है तो F4 करके आप इजीली उसे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बिल्स रिसीवेबल्स। यस, अभी फिलहाल हम लोग पेएबल्स के रिपोर्ट में है। आप चाहते हो कि आपको रिसीवेबल्स के रिपोर्ट में जाना है तो एस्केप करके बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, F5 करते ही आप डायरेक्टली बिल्स रिसीवेबल के रिपोर्ट्स में आ जाओगे। नेक्स्ट है F6 एजिंग मेथड। इसे थोड़ा हम लोग साइड में रखेंगे, थोड़े टाइम के बाद ये ऑप्शन का यूज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है F8 लेजर वाइज बिल। इसका यूज क्या है? जैसे मैं यहाँ पे F8 कर रही हूँ, F8 करते ही और भी हमारा स्क्रीन डिटेल में हमें शो हो रहा है। लाइक अभी जो स्क्रीन हमें दिख रही थी वो कम्प्लीटली क्लब होके शो हो रहा था, लाइक इंडिविजुअल पार्टी का इंडिविजुअल इनवॉइस हमें शो हो रहे थे। बट अभी यहाँ पे आप देखोगे तो सर्टन पार्टी के नीचे आपने कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं, उनको कितना पे किया है, वो भी यहाँ पे आपको डिटेल में समझ में आ रहा है। लाइक अगर आप फर्स्ट पार्टी यहाँ पे देखोगे जो मैंने क्रिएट की है यहाँ पे आकाश एंटरप्राइजेस की, उनके साथ ट्रांजैक्शन मेरा 8,40,000 का हुआ है और मैंने उनको पार्ट पेमेंट किया है। 8 लाख मैंने ऑलरेडी पे किया है और मेरा पेंडिंग अमाउंट मुझे यहाँ पे शो हो रहा है 40,000। इससे आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी मिल रही है कि उनको प्रीवियसली आपने कितना पे किया है और आगे जाके कितना पे करना है। और जो नेक्स्ट अभी हम लोग ने एंट्री पास की अभी, वो भी हमें यहाँ पे नीचे शो हो रही है। देन नेक्स्ट है हमारा बेसिस ऑफ वैल्यूज। बेसिस ऑफ वैल्यूज में जाते ही आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, दैट इज टाइप ऑफ बिल्स एंड इंक्लूड पोस्ट डेटेड वाउचर्स। टाइप ऑफ बिल्स में क्या है, अभी करंटली जो हमारा रिपोर्ट यहाँ पे ओपन हुआ है वो एज अ पेंडिंग बिल्स के लिए शो हो रहा है। बट अगर आप इसके ऊपर एंटर करोगे तो ओवर ड्यू बिल्स हमें शो हो रहा है। ओवर ड्यू बिल्स यानी कि क्या, कि पर्टिकुलर सो एंड सो पीरियड के बाद भी हम लोग ने किसी पार्टी को पेमेंट नहीं किया है, उनका बिल या फिर उनका पेमेंट ओवर ड्यू हो चुका है। ऐसे बिल्स कितने हैं वो अगर मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ पे ओवर ड्यू बिल्स पे जाके उसे चेक करूंगी। फिलहाल हम लोग पेंडिंग बिल्स का रिपोर्ट देखेंगे। और नेक्स्ट जो है हमारा, अगर आपको पोस्ट डेटेड वाउचर्स का पूरा डिटेल्स देखना है तो ये ऑप्शन आप ऑन करके पोस्ट डेटेड वाउचर्स भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा चेंज व्यू। चेंज व्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको कम्प्लीटली रिलेटेड रिपोर्ट्स मिलते हैं, लाइक आपको मंथली समरी देखना है, कैश फ्लो फंड फ्लो देखना है, रिसिप्ट पेमेंट देखना है, तो वो भी जो रिपोर्ट है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। देन नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्शन रिपोर्ट। एक्सेप्शन रिपोर्ट में क्या है, निगेटिव लेजर, यानी कि किसी पार्टी के साथ हमारा निगेटिव बैलेंस हुआ है, वो कौन सी पार्टी है वो अगर चेक करना है तो हम लोग निगेटिव लेजर्स से चेक कर सकते हैं। कितने निगेटिव लेजर्स मेरे डेटा में पड़े हैं वो आप यहाँ से इजीली ट्रैक कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट है हमारा ओवरड्यू रिसीवेबल्स एंड ओवरड्यू पेबल्स। जैसे मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, ओवरड्यू यानी कि एक सर्टन पीरियड के बाद भी हम लोग को कुछ पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है या फिर किसी पार्टी को हम लोग ने ओवरड्यू होने के बाद भी पे नहीं किया है, ऐसे रिपोर्ट अगर आपको अलग से देखना है तो आप यहाँ पे एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में जाके चेक कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज F12 कॉन्फ़िगर। F12 कॉन्फ़िगर में जाते ही हमें यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आपको ओपनिंग अमाउंट देखना है तो वो आप यहाँ पे F12 में जाके चेक कर सकते हो। अगर रिपोर्टिंग का कुछ आपको मतलब आपके हिसाब से अगर मॉडिफाई करके आप देखना चाहते हो, लाइक पार्टी नेम के अलावा उनका एलाइज दिखना चाहिए, तो आप यहाँ पे जाके उसे चेंज कर सकते हो। सॉर्टिंग मेथड यहाँ पे आप आपके हिसाब से, यानी कि कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल रिपोर्ट हमें यहाँ पे अवेलेबल होता है, जैसे आपको चाहिए उसके हिसाब से आप मॉडिफाई करके वो रिपोर्ट देख सकते हो। सो ये था कंप्लीट हमारा बिल्स पेएबल का रिपोर्ट। सो अभी जो मैंने बिल बनाया था
गुडविल एंटरप्राइजेस का, उसे हमें एडजस्ट करना है। वो पार्टी को हम लोग पे कर रहे हैं, तो वो एंट्री हमें कैसे एडजस्ट करनी है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एस्केप करके बाहर जाके मेरा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा टैली प्राइम का कम्प्लीटली ऑल न्यू फीचर हमें मिला है, दैट इज गो टू। सो गो टू में जाके मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्रिएट वाउचर्स में जाऊँगी। क्रिएट वाउचर्स में जाके ही मैं F5 पेमेंट, मैंने फर्स्ट वेब को उनसे परचेज किया था, तो मैं उनको पे कर रही हूँ सपोज 10 फेब को थ्रू बैंक। पार्टी नेम है मेरा गुडविल एंटरप्राइजेस। और अभी यहाँ पे देखोगे तो गुडविल एंटरप्राइज यानी कि पार्टी नेम के नीचे उनका करंट बैलेंस भी आपको शो हो रहा है, यानी कि वो पार्टी को कितना पेमेंट देना है वो भी अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो कंफ्यूजन की कोई भी बात नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट डालेंगे, और जैसे ही हम लोग अमाउंट डालेंगे तो बिल वाइज डिटेल्स का विंडो अगेन यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग मेथड क्या सिलेक्ट करेंगे, जब भी हम लोग ने न्यू एंट्री पास किए थे परचेज की, उस टाइम पे हम लोग ने सिलेक्ट किया था न्यू रेफरेंस। बट अभी ये जो पेमेंट हम लोग कर रहे हैं वो बिल के अगेंस्ट में कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। तो अगेंस्ट रेफरेंस करते ही वो पर्टिकुलर पार्टी के साथ जितने भी आपने प्रीवियसली बिल बनाया है वो सारे बिल्स की लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, जिनका भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट बाकी रहेगा। सो उसमें से जो इनवॉइस के अगेंस्ट पेमेंट आपको आया है वो पर्टिकुलर इनवॉइस आप यहाँ पे सिलेक्ट करके वो एंट्री को आप नॉकअप कर दोगे। सो जैसे ही हम लोग ये एंट्री सेव करेंगे और अभी हम लोग रिपोर्ट देखेंगे, तो जो गुडविल एंटरप्राइजेस पार्टी जो हमें यहाँ पे शो हो रही थी वो यहाँ से रिमूव हो गई। क्यों? क्योंकि हम लोग ने उनका अकाउंट जो है वो कम्प्लीटली सेटल कर दिया है। तो ये था हमारा कंप्लीट बिल्स पेबल। अभी हम लोग देखेंगे रिसीवेबल्स। सो ये केस में एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। लाइक फॉर एग्जांपल सामने वाली पार्टी जो है जो मेरे से परचेज करते हैं गुड्स और मैं उनको सेल कर रही हूँ, उन्होंने मुझे कुछ अमाउंट जो है वो एडवांस में दिया। तो वो केस में हम लोग कैसे अपना एंट्री एडजस्ट करेंगे या फिर उसका ट्रैक हम लोग कैसे रखेंगे, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे जा रही हूँ वाउचर्स में, रिसिप्ट में एंट्री पास करूँगी क्योंकि वो मुझे एडवांस दे रहे हैं। राइट, उन्होंने मुझे एडवांस दिया है 10 फरवरी को, और वो पार्टी है मेरी फॉर एग्जाम्पल MNS कॉर्पोरेशन अंडर ग्रुप सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि मैं उनको सेल कर रही हूँ। सेम मेंटेन बैलेंस विल बाय बिल, ये ऑप्शन हमें ऑन रखना होगा। ठीक है, तो मैं उनको अभी रिसिप्ट कर रही हूँ, तो बैंक के थ्रू मतलब वो हमें एडवांस में पे कर रहे हैं, और वो पार्टी नेम अभी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुझे 1 लाख एडवांस में दे रहे हैं, ठीक है, अमाउंट डालते ही यहाँ पे हमें अपना एक विंडो शो हो रहा है, दैट इज बिल वाइज डिटेल का। तो यहाँ पे हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, एडवांस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही ये ऑप्शन एक्सप्लेन करने के टाइम पे ही बोला था, अगर आपको कोई पार्टी एडवांस में पे कर रही है या फिर आप किसी को एडवांस में पे कर रहे हो, तो आपको उस टाइम पे मेथड सिलेक्ट करना होगा एडवांस। एडवांस सिलेक्ट करते ही यहाँ पे अगर मुझे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालनी है तो वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ। 1 लाख उन्होंने मुझे एडवांस में दिए हैं। अभी नेक्स्ट 2 डेज में वो पार्टी मेरे से सो एंड सो मटेरियल परचेस कर रही है, तब मैं यहाँ पे सेल एंट्री अभी पास करने जा रही हूँ। विद इन 2 डेज में उन्होंने मेरे यहाँ से मटेरियल परचेस किया है, तो मैं मेरे डेटा में सेल की एंट्री पास करूँगी। सो पार्टी नेम था मेरा MNS कॉर्पोरेशन, पार्टी डिटेल्स, सेल्स अकाउंट, मैं सेल कर रही हूँ उनको ये प्रोडक्ट 500। ठीक है, सो देन नेक्स्ट मेरा टैक्स। अभी आप देखोगे यहाँ पे उन्होंने मुझे 1 लाख का पेमेंट दिया था, बट हमारा बिल अमाउंट हो रहा है 1,68,000। तो इसे हम लोग एडजस्ट कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। तो बिल वाइज रेफरेंस में हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम लोग ने पहले ही ऑलरेडी एडवांस का एंट्री पास किया है, तो वो एडवांस के अगेंस्ट में हम लोग ये सेल बिल बना रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस। अगेंस्ट रेफरेंस जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आपने जो एडवांस का एंट्री पास किया था वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उन्होंने अमाउंट हमें कितना पे किया था एडवांस में, दैट इज 1 लाख रुपीज, वो हम लोग डालेंगे। और जो रिमेनिंग मेरा पेमेंट बच रहा है 68,000 का, उसे हम लोग दिखाएंगे न्यू रेफरेंस में। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिंपल नॉर्मल सेल्स की एंट्री। अभी जो पेंडिंग अमाउंट है उनका भी पेमेंट वो मुझे विद इन 5 डेज में कर रहे हैं, तो वो मैं कैसे चेक करूंगी। अगर आगे जाके मुझे चेक करना है वो पार्टी का कितना अमाउंट पेंडिंग है, अभी तक आना बाकी है, तो सेम लाइक यहाँ पे आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग एंड रिसीवेबल्स में
रिसीवेबल्स में जैसे ही आप जाओगे तो आपको वहाँ पे वो पार्टी शो करेगी, M&S कॉर्पोरेशन। एंड डायरेक्टली आप यहाँ पे ऑल टेक्स्ट बंद करोगे तो डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेल के लिए भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। एंड जो सारे ऑप्शन मैंने आपको पेएबल्स में एक्सटेंड किए थे राइट हैंड साइड पे, वो सारे ऑप्शंस आपको बिल्स रिसीवेबल्स में भी अवेलेबल रहेंगे। सो अभी ये पार्टी के मेरे ओवरऑल 68,000 पेमेंट आना बाकी है। तो चलिए इसे भी हम लोग नॉकअप कर देते हैं। क्रिएट वाउचर्स, उन्होंने सपोज मुझे पे किया है 15 को, ठीक है। पार्टी नेम हम लोग सिलेक्ट करेंगे, कंपनी डिटेल्स, सेल्स लेजर, सॉरी रिसिप्ट कर रहे हैं, वो हमें पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टी नेम सिलेक्ट करने के बाद टोटल ओवरऑल जितना भी अमाउंट बचा है वो हम लोग यहाँ पे डाल के यहाँ पे अभी हम लोग सिलेक्ट करेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि जो सेल बिल हम लोग ने बनाया है वो हम लोग ने उस टाइम पे न्यू रेफरेंस में शो किया था, इसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे अगेंस्ट रेफरेंस के साथ और वो बिल हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। तो वो एंट्री हम लोग सेव कर देंगे। एंट्री सेव करने के बाद अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो वो पार्टी हमारे रिपोर्ट से रिमूव हो गई, क्योंकि हम लोग ने उनका अकाउंट जो है वो सेटल कर लिया। तो ये था बिल वाइज रिसीवेबल्स का रिपोर्ट। अभी तक जो रिपोर्ट हम लोग ने देखा आई थिंक वो मे बी बहुत सारे लोगों को पता रहेगा, बट प्राइम में हमें न्यू रिपोर्ट अवेलेबल किया है टैली प्राइम में। सो वो क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। लाइक डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से अगर आप एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन में जाते हो, देन डेटा एनालिसिस, यहाँ पे पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स का एक रिपोर्ट हमें मिलता है। पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स में जैसे हम लोग एंटर करते हैं तो यहाँ पे हमें नेट पेंडिंग रिसीवेबल्स एंड नेट पेंडिंग पेएबल्स यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे अलग चीज क्या मिल रहा है कि आपको टोटल नंबर ऑफ इनवॉइसेस दिख रहा है कि कितने इनवॉइसेस का अमाउंट आना बाकी है और कितने अमाउंट्स का आपको पे करना बाकी है। इसके साथ साथ अमाउंट भी यहाँ पे हमें शो हो रही है, तो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली आइडिया आ जाता है कि कितना आपको पे करना है और कितना आपको रिसीव होगा। अगर सपोज मैं इसके अंदर ड्रिल डाउन करती हूँ तो यहाँ पे और डिटेल में व्यू हमें मिलता है, दैट इज वो कौन सी पार्टी का इनवॉइसेस पेंडिंग है, कितने इनवॉइसेस, नंबर ऑफ इनवॉइसेस कितने पेंडिंग है वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। और साथ में ही ऑन अकाउंट में कितने सारे वाउचर्स आपने डाल के रखे हैं उसका भी डिटेल रिपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। अगर इनकेस इसमें से कोई भी एक रिपोर्ट में सपोज ओपन कर रही हूँ तो ये स्क्रीन तो हमें एज इट इज हमारे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट की तरह दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे 2 ऑप्शन और न्यू ऐड हुए हैं, दैट इज वेरिफिकेशन स्टेटस एंड वेरिफिकेशन नोट। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये एक एंट्री मेरी ऑन अकाउंट में है और अगर सपोज आपके कोई अकाउंटेंट ने इसे वेरीफाई किया है, वो एंट्री ऑन अकाउंट में क्यों है, उसका रीजन अगर उनको पता रहेगा, उसका स्टेटस अगर उनको पता रहेगा, अगर एडिशनल कुछ नोट वो डालना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे सर्टन कुछ ऑलरेडी प्रीडिफाइंड स्टेटस हमें दिए हैं तो वो सिलेक्ट करके एडिशनल नोट अगर उनको डालना है तो वो यहाँ पे नोट ऐड कर सकते हैं। सेम रिपोर्ट आर अवेलेबल फॉर नेट पेंडिंग पेएबल्स ऑल्सो। सो ये था कंप्लीट हमारा मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स। सो अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज क्रेडिट मैनेजमेंट। सो बेसिकली व्हाट इज क्रेडिट मैनेजमेंट? ऑलरेडी अनघा मैम ने हमें एक्सप्लेन किया है, दैट इज इट्स अ प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग क्रेडिट और सेटिंग द टर्म्स टू कंट्रोल अवर आउटस्टैंडिंग। यानी कि कस्टमर को जो लिमिट हम लोग लगाते हैं वो क्यों जरूरी रहता है, कंपनी क्यों कस्टमर को लिमिट प्रोवाइड करती है, क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल अपने कंपनी ने किसी कस्टमर को क्रेडिट डेज प्रोवाइड किया है, बट वो पेमेंट जो पार्टी से आने वाला रहता है वो बहुत ही स्लोली हमें मिलता है, जिसके कारण अपनी जो रिकवरी है ना वो बहुत स्लो होती है और आउटस्टैंडिंग एज इट इज हमारे अकाउंट में दिखाई देता है। सो अभी इसमें क्या होगा कि टैली टाइम में आप 2 वे से आपका क्रेडिट मैनेज कर सकते हो, आइदर बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट डेज और बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट लिमिट। अगर इन केस आप पर्टिकुलर डेज उनको प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको कंप्लीट एक ड्यू डेट के साथ रिपोर्ट अवेलेबल होता है कि कौन सी डेट तक मेरा वो पेमेंट रिकवर होने वाला है मुझे, और इवन आप डेज का एजिंग भी रिपोर्ट चेक कर सकते हो। एंड थ्रू क्रेडिट लिमिट में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को 2 लाख का लिमिट अगर आप अलॉट कर रहे हो और 2 लाख के बाद अगर आप वो पार्टी के ऑलरेडी 2 लाख खत्म हो चुके हैं, वो लिमिट ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, और उसके बाद अगर सपोज आप 1 रुपीज़ का भी एंट्री करने के लिए जाओगे तो वो एंट्री सेव नहीं होगी, वहाँ पे आपको स्टक करेगा और एक मैसेज वहाँ पे शो होगा लाइक सो एंड सो पार्टी का जो लिमिट है वो ऑलरेडी एक्सीडेड है, तो ये बिल हम लोग नहीं बनाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो आगे बढ़ने वाला जो आउटस्टैंडिंग है वो कम होगा और इवन प्रीवियस जो आउटस्टैंडिंग है उसका रिकवरी फटक से हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमें क्रेडिट डेज कैसे अलॉट करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट में जाऊंगी, यहाँ पे न्यू लेजर हम लोग क्रिएट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल केके इंडस्ट्रीज, सन्डी डेटर्स रहेंगे वो मेरे,
देन मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल जब भी हम लोग ने ऑन किया था तो यहाँ पे एक ऑप्शन हमें शो हो रहा है दैट इज डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड। फॉर एग्जांपल मैं उनको 30 डेज का पीरियड अलॉट कर रही हूँ, ठीक है। और अभी इनके साथ हम लोग एक एंट्री पास कर देते हैं सेल की। सपोज आज के डेट की वो एंट्री है केके इंडस्ट्रीज, पार्टी सेव किया मैंने, सेल्स, ठीक है। और जब भी आप यहाँ पे बिल वाइज डिटेल के विंडो में आ जाओगे तो यहाँ पे और एक ऑप्शन ऐड हुआ हमें दिखाई दे रहा है दैट इज ड्यू डेट एंड क्रेडिट डेज। तो जो डेज आपने पार्टी मास्टर में डिफाइन करके रखे हैं वो सेम डेज आपको यहाँ पे एंट्री लेवल पे शो हो जाएंगे और साथ में उसके नीचे वो ड्यू बिल कब आपका ड्यू होने वाला है। सो इसके थ्रू आप इजीली आपका रिकवरी कर सकते हो। अभी ये डेज अलॉट करने के बाद हमें और एडिशनल क्या रिपोर्ट में मिलता है तो वो हम लोग देखेंगे। लाइक अगर मैं सेम अपने आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में जा रही हूँ, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स, तो ये रिपोर्ट ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे राइट हैंड साइड में ड्यू ऑन के डेट दिख रहा है, यानी कि वो पर्टिकुलर पार्टी का बिल कब ड्यू होने वाला है, यानी कि वो उस डेट तक हमें पे करेंगे। और अगर वो ड्यू डेट खत्म हो रही है तो उसके बाद कितने दिनों तक वो पेंडिंग है हमारे अकाउंट में आना, यानी कि ओवर ड्यू डेज कितने हैं वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट अभी हम आएंगे जो ऑप्शन हम लोग ने यहाँ पे F6 एजिंग मेथड साइड में रखा था वो पॉइंट अभी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एजिंग मेथड में जाती हूँ तो यहाँ पे दो मेथड्स मुझे मिलते हैं दैट इज एजिंग बाय बिल डेट एंड एजिंग बाय ड्यू डेट। सो एजिंग बाय बिल डेट जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी तो यहाँ पे मुझे डेज की फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। ये फ्रीक्वेंसी आपको ऐड करनी रहेगी जैसे आपने आपके डेटा में मेंटेन किया रहेगा, लाइक 15 डेज, 30 डेज, 30 to 60, 60 to 90, जैसे आपको रिपोर्ट शो होना है वैसे आप यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी ऐड कर सकते हो। देन अभी हम लोग ये पर्टिकुलर पेज सेव करेंगे। पेज सेव करने के बाद यहाँ पे हमें कंप्लीट एक रिपोर्ट शो हो रहा है, लाइक विद इन 30 डेज में आपको कितना पेमेंट आने वाला है, 30 to 60 डेज में आपको कितना पेमेंट रिकवर होगा, 60 to 90 में कितना पेमेंट रिकवर होने वाला है। तो डिटेल में हमें कंप्लीट यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है। इसका आपको हेल्प कहाँ पे होगा, अगर सपोज कंपनी को कोई इन फ्यूचर में फाइनेंशियल रिगार्डिंग कुछ डिसीजंस लेने हैं, मतलब आगे जाके फंड मेरे पास कितना अवेलेबल होने वाला है, तो ये सो एंड सो एक्टिविटी हम लोग आगे कर सकते हैं क्या, उसका प्लानिंग एंड प्रिपरेशन या फिर उसका डिसीजन आप करंट टाइम में ले सकते हो। सो आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल रिपोर्ट हमें टैली प्राइम में अवेलेबल हो रहा है। तो ये था हमारा नॉर्मल क्रेडिट डेज। अभी हम लोग देखेंगे क्रेडिट लिमिट। सो वापस मैं एक नॉर्मल लेजर क्रिएट कर देती हूँ, दैट इज फॉर एग्जांपल से टेक्नोलॉजी अगेन सन्ड्री डेटर। अभी यहाँ पे तो हमें क्रेडिट लिमिट का कुछ ऑप्शन इधर शो नहीं हो रहा है, तो वो ऑप्शन कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में मोर डिटेल्स में अगर आप जाओगे तो मोर डिटेल्स में वो ऑप्शन हमें मिल जाएगा दैट इज क्रेडिट लिमिट। जैसे मैं यहाँ पे क्रेडिट लिमिट के अंदर एंटर करती हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं इनको 2 लाख का लिमिट प्रोवाइड कर रही हूँ और अभी हम लोग सेम पार्टी के साथ एक एंट्री पास करेंगे, फॉर एग्जाम्पल पार्टी नेम से टेक्नोलॉजी। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो एंट्री लेवल पे एक ऑप्शन शो हो रहा है दैट इज क्रेडिट लिमिट। कितना लिमिट आपने वो पार्टी को प्रोवाइड किया है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसके कारण क्या होगा ना कि आपके जो भी अकाउंटेंट बिल बना रहे हैं उनको एक आइडिया रहेगा कि मुझे ये पार्टी को इतने लिमिट तक का ही मटेरियल सेल करना है। देन नेक्स्ट अभी हम लोग आगे एंट्री पास कर देते हैं, ठीक है। 1,50,000 का बिलिंग में उनको करने जा रही हूँ, ठीक है। अगेन नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे से और भी कुछ मटेरियल परचेज किया है सेम पार्टी में। 1,50,000 का जो प्रीवियस बिल बनाया था वो तो सेव हो गया एज इट इज, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी सेम हम लोग बिलिंग बनाते हैं, यहाँ पे सेम प्रोडक्ट हम लोग उनको दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या शो होगा वो हम लोग देखते हैं। प्रीवियसली ऑलरेडी हम लोग ने 1,50,000 का बिल बनाया है और अगेन हमारे बिल की अमाउंट हो रही है 1,50,000, ठीक है। सो लिमिट जो है वो क्रॉस हो रही है, तो क्या शो होता है वो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। सी जैसे ही हम लोग एंट्री एक्सेप्ट करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है दैट इज क्रेडिट लिमिट ऑफ ANS टेक्नोलॉजीज इज 2 लाख एक्सीडेड। मतलब हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमें बता रहा है कि वो पर्टिकुलर पार्टी को जो हम लोग ने लिमिट अलॉट किया है उसके ऊपर आपका बिलिंग जा रहा है। सो बिल हम लोग
उनको नहीं देंगे या फिर मटेरियल हम लोग उनको नहीं सेल करेंगे, ये एंट्री जो है वो आपकी सेव नहीं होगी। इससे क्या होगा कि जो आपका आउटस्टैंडिंग बढ़ते जा रहा है वो आप उसे रोक सकते हो और प्रीवियस का जो आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है उसे आप इजीली रिकवर कर सकते हो। सो आई थिंक ये सारे प्रोसेस जो है बिल्स, रिसीवेबल्स, पेएबल्स के, क्रेडिट मैनेजमेंट के अगर प्रॉपरली हम लोग अपने डेटा में मेंटेन करते हैं या फिर मैनेज करते हैं तो आपको ही ईजी रहेगा और आपका आउटस्टैंडिंग ईजी वे में आप रिकवर कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो आई थिंक सबको इसका बेनिफिट लेना चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, दीपा मैम। Thank you, Ms. Manali. Thank you so much. It was really a pretty cool presentation and demo here. Well, it really matters. Well, it really matters that how do you manage your accounting system into your organization, just to avoid the distractions into the finance specifically. तो यहाँ पे हमारे फाइनेंस को सही तरीके से मैनेज करने के लिए एक एंट्री से लेके एक इनपुट आउटपुट सारी चीज़ों को हमें मैनेज करने के लिए Tally has given a flexible software and a very easy moving kind of structure and criteria जो सबको एडवांटेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So use the feature in a right way to save your time and manage your organization, as well as the very important thing is outstanding. Outstanding payment always matters for an organization. Let us not leave any outstanding payment. Let us not allow exceeding of outstanding payment. So this is what all about today's topic. शायद आप सब ने बहुत interestingly इस topic को लिया होगा. So, Mr. Bhagwati, are you here? Yes. Yes, I think you have already given the over recap, but still, if you would like to add something, request you to please proceed ahead. Yeah, this is actually key of the business, key of the success of the business. Actually, finance is a big matter for any organizations. So overall, this is a very helpful topic for all of the organizations. वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, इज नॉट अ मैटर. दिस इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. सो आई रिक्वेस्ट टू माय ऑल ऑडियंस एंड कस्टमर्स कि they implement this all features and take the advantage, and also connect with his account manager. They are coordinating with the Rajlakshmi. आप उनसे बात करें और हमारे सपोर्ट नंबर पे भी आप फोन करके इसका एडवांटेज ले सकते हैं. यू कैन कनेक्ट विथ मी डायरेक्टली. माय नंबर इज ऑल्सो पॉपुलेट इन द चैट बॉट, so you can connect with me directly. Also you can connect with our support center, you can connect with our accounts manager, and major you can subscribe our YouTube channel for all those features and all upcoming जो भी हमारे सेशंस हो रहे हैं उन सभी वीडियोस को देखने के लिए. Like this video will also upload within in this week, coming week on the YouTube channel. So you can also go through that through the YouTube channel. So you subscribe our YouTube channel. This is a main advantage. You take the main advantage of our all the webinars and sessions and training sessions. So that's it from my side, Deepa. Thank you. Thank you, Mr. Bhagwati. It was a pleasure having the details again here. So request you to please check onto your chat box. The details are given over there. So if you have any doubts or any queries, you can just connect directly to the organization here, or else you do have the facilities at website. आप Rajlakshmi Solution website में जा सकते हो. You have all the facilities over for requesting a call back, या फिर आप वहाँ पे अपने executives के साथ chat कर सकते हो, and as well you can update your requirements over there. So apart from this, I must say, as I said, the financial year offer, again let me come back to there. The financial year offers पे जरूर ध्यान दीजिएगा. Shortly we will be updating the details, because today's 27th, the details will be uploaded March 1st onwards. So do focus onto the offers and take the right advantage onto it. That's it for today. So thank you so much, the presenter Mrs. Anaga and Ms. Manali. You really made the presentation well. But yes, I have to say here to the spectators that there was little interruption or distraction in the session. But yes, let us see to it if we get the demand of this webinar topic once
once again, we will for sure have onto the same topic once again, the demo as well as the presentation, to just facilitate you and give the flexible responses over here. So that's it, and thank you, Mr. Bhagwati, for your patience and for your time onto this webinar. And thanks to all spectators here who are here, who are sparing your time to understand the concepts of the accounting, financial management, receivable, payables, credits, etc. So thank you so much, and see you soon in the next webinar. Stay tuned and bye-bye. Thank you so much. See you in next webinar. Thank you, everyone.